Hello everyone. First of all, a very healthy, charming and pleasant good morning to all of you. I welcome you all to this FAME English Academy. I hope you all are safe at your home. Today, we are going to start our class with a very important topic. This topic is especially very important for those who want to learn English speaking. So before I start speaking on this particular topic, I would like to start with a thought. And the thought is, imagination is more important than knowledge. Imagination is more important than knowledge. There are two terms, imagination and knowledge. इमेजिनेशन जो है वो नॉलेज से अधिक इंपॉर्टेंट है. आई एम नॉट टेलिंग यू कि नॉलेज इज नॉट इंपॉर्टेंट. नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट उससे भी जो अधिक इंपॉर्टेंट है दैट इज इमेजिनेशन. मीन्स whatever we have, we must utilize that particular thing. If we are not thinking of the things which we have, then knowledge is useless. So it's my request, आप में जो चीज है उसको पहचानिए, उसके बारे में सोचिए और उसका यूज करिए. Only then your knowledge is important for you. Otherwise it is useless. So the thought imagination is more important than knowledge is 100% correct. We know every individual has different types of knowledge, talent. Now it is very important how he or she is using. चलिए अब शुरू करते हैं हम आज के टॉपिक. The topic is English speaking versus English grammar. English speaking के लिए English grammar की आवश्यकता है या नहीं है, that is the topic on which we are going to discuss. I decided to have a discussion on this particular topic because there are some contradictions. There are some people who say कि for speaking grammar is not important. Without grammar we can learn speaking very well. But on the other hand, there are some people who say कि no, this is not the fact. For speaking grammar is very important. Without grammar we cannot learn speaking. तो एक सीखने वाला जो स्पीकिंग सीखने की कोशिश कर रहा है वो किन की बातों पे ध्यान दें. इंग्लिश सीखने के लिए
इंग्लिश स्पीकिंग सीखने के लिए वो ग्रामर सीखे या ना सीखे, ग्रामर का हेल्प ले या ग्रामर का हेल्प ना ले, दैट इज अ वेरी बिग चैलेंज, अ वेरी बिग क्वेश्चन फॉर देम. That's why I decided to clarify this doubt, and we will discuss the whole topic. After that we will find out one conclusion. एक conclusion हम find out करेंगे कि if grammar is important for speaking, then how it is important? And if grammar is not important, then how it is not important? We will prove each and everything. तो आगे चलते हैं. इंग्लिश. We know very well कि English is not our own language. It is an international language. It is a foreign language, we can say, but these days English language has become the most important language in the whole world. It is because English is spoken everywhere in the whole world these days. अब क्वेश्चन है कि इंग्लिश हम कैसे सीखें. ये मैंने कह दिया कि इंग्लिश सबसे इंपॉर्टेंट भाषा है आजकल. नाउ द क्वेश्चन इज कि हाउ वी हैव टू लर्न दिस स्पीकिंग इंग्लिश. एंड वन थिंग इज फैक्ट कि इफ वी नो इंग्लिश वेल, इफ वी नो हाउ टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश वेल, वी कैन adjust anywhere in the whole world. And if we don't know English properly, it might be a bit difficult thing for us to survive everywhere. That's why it is very important for us to learn English if we want to do something better in our life. अब सवाल यह है कि इंग्लिश सीखने के लिए हमें ग्रामर सीखना है या नहीं है. दिस इज द टॉपिक. चलिए, वी शुड नो एंड वी नो दैट फॉर स्पीकिंग एनी लैंग्वेज, चाहे हम हिंदी की बात करें, चाहे इंग्लिश की बात करें, चाहे फ्रेंच की बात करें, जर्मन की बात करें, एनी लैंग्वेज हैज इट्स ओन बेसिक फंडामेंटल रूल्स. जिन फंडामेंटल रूल्स को हमें जानना ही जानना है, हमें समझना ही समझना है. वी शुड नॉट इग्नोर द बेसिक फंडामेंटल रूल्स ऑफ एनी लैंग्वेज. अब वो जो बेसिक फंडामेंटल रूल्स हैं वो हम कैसे सीखेंगे, दैट इज अ चैलेंज, दैट इज अ क्वेश्चन. तो हम इस पे बात करेंगे आगे कि हाउ वी हैव टू लर्न ईच एंड एवरीथिंग. एंड मैंने कहा कि इंग्लिश हमारा लैंग्वेज नहीं है. इंग्लिश के लिए वी आर फेसिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स. तो किसी भी भाषा को सीखने के लिए we have two options. हम स्पीकिंग की बात करते हैं. स्पीकिंग के लिए we have two options. The first one is environment. The first one is environment. If we have proper environment, then we can learn any language without paying much attention on grammar. सीख सकते हैं हम.
अब हम भाषा की बात करते हैं, तो किसी भी लैंग्वेज के लिए देयर आर 4 स्किल्स, LSRW: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग. देयर आर 4 स्किल्स. ये जो स्पीकिंग है जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, दिस स्पीकिंग इज थॉरोली बेस्ड ऑन लिसनिंग. ये लिसनिंग पे बेस्ड है. इट इज सेड दैट हाउ वी listen, or it is said that the way we listen, the same way we speak. जैसा हम सुनते हैं, जैसा हम सुनते हैं वैसा ही बोलते हैं. एंड दिस इज द फैक्ट, जिसको हम कहते हैं मदर टंग इन्फ्लुएंस, MTI इन्फ्लुएंस. तो ये जो बोलना है ये सुनने पे डिपेंड करता है कि हाउ वी लिसन, और किन सोर्स से हम लिसन करते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस सोर्स इज कॉल्ड एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट, वी नो वेरी वेल कि हिंदी के लिए वी डोंट हैव मच प्रॉब्लम. हिंदी हम बोल भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं, लिख भी लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं, एंड वी डोंट हैव मच प्रॉब्लम. एंड वी डिडंट स्टडी ग्रामर प्रॉपरली. हमने ग्रामर हिंदी का सीखा नहीं, फिर भी हम सीख गए बोलना, पढ़ना, लिखना, समझना. ये इसलिए कि वी हैव प्रॉपर एनवायरनमेंट. हिंदी का हमारे पास प्रॉपर एनवायरनमेंट है, और उस एनवायरनमेंट से हम सीख लिए सब कुछ. द डे वी स्टार्टेड लिसनिंग, that particular day we started listening Hindi words, Hindi sentences, and we became expert in Hindi. यदि ऐसा ही माहौल इंग्लिश का हो तो हम ग्रामर पे अधिक अटेंशन दिए बगैर इंग्लिश भी सीख सकते हैं. बट वी नो वेरी वेल कि इंग्लिश के लिए हमारे पास वो प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं है. देन व्हाट इज अनदर ऑप्शन? फिर क्या ऑप्शन है? तो ये एक जो दूसरा ऑप्शन है ये है हेल्प ऑफ ग्रामर. If we don't have proper environment, then the second option is help of grammar. अब हमें ग्रामर का हेल्प लेना पड़ेगा. अब ये ग्रामर का हेल्प हम लेंगे क्यों? तो मैंने पहले ही कहा कि एवरी लैंग्वेज हैज इट्स ओन बेसिक फंडामेंटल रूल्स. The same way English has also its basic fundamental rules, जिसको हम क्लियर करेंगे with the help of grammar. Because we don't have proper environment, हम उतना English नहीं सुनते हैं जितना कि हिंदी सुनते हैं. So help of grammar is the second option to learn speaking. नाउ द क्वेश्चन इज कि जब एनवायरनमेंट जहां है तो क्या हम बगैर ग्रामर पे फोकस किए अंग्रेजी सीख जाएंगे? नो. अब चलिए हम दूसरी चीज की बात करते हैं. स्पीकिंग के लिए या राइटिंग के लिए वी हैव टू ऑप्शंस. एक है फॉर्मल एंड दूसरा है इनफॉर्मल.
फॉर्मल की जब हम बात करते हैं तो उसमें ग्रामर का एक भी मिस्टेक नहीं चलेगा। इनफॉर्मल में छोटे छोटे मिस्टेक्स चल जाते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ एनवायरनमेंट वी कैन लर्न इनफॉर्मल, but when we talk about formal language, formal English, then grammar is the key point. Without grammar we cannot think, we cannot imagine about the formal language. तो जहां प्रॉपर एनवायरनमेंट है वहां भी हमें ग्रामर के हेल्प की आवश्यकता पड़ेगी। ये इसलिए कि ग्रामर गिव्स अस बेसिक फंडामेंटल रूल्स, whereas environment gives us the opportunity where we can polish ourselves. अपने आप को पॉलिश कर सकते हैं। ग्रामर के रूल्स जो हमने सीखा उसको सेंटेंसेज में यूज कर सकते हैं, एंड वी कैन डू ईच एंड एवरीथिंग। नाउ द क्वेश्चन इज कि जहां एनवायरनमेंट नहीं है तो क्या केवल ग्रामर पे फोकस किए, केवल ग्रामर पे फोकस करके हम अंग्रेजी स्पीकिंग सीख जाएंगे? नो, दिस इज नॉट द थिंग। मैंने पहले कहा कि ये जो ग्रामर है, ग्रामर गिव्स अस बेसिक फंडामेंटल रूल्स। इसको यूटिलाइज करने के लिए, हमें अपने आप को पॉलिश करने के लिए आवश्यकता पड़ेगी एनवायरनमेंट की। तो बोथ एनवायरनमेंट एंड हेल्प ऑफ ग्रामर आर इंपॉर्टेंट टू लर्न स्पीकिंग। किसी एक को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। एनवायरनमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, द सेम वे ग्रामर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वी हैव नॉट टू इग्नोर एनी वन ऑफ देम। किसी भी एक को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। अब बात आती है कि इंग्लिश ग्रामर, वी नो कि इंग्लिश का हमारे पास वो प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं है, तो हमें इंग्लिश ग्रामर का हेल्प लेना ही पड़ेगा। अब इंग्लिश ग्रामर इतनी मोटी सी किताब है, किन पोर्शंस को हम फोकस करें, किन को फोकस ना करें, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो आई विल टेल यू इन नेक्स्ट वीडियोस कि फॉर स्पीकिंग ग्रामर के किस पार्ट को हम फोकस करेंगे, सो दैट वी विल कम टू नो एट लीस्ट द बेसिक फंडामेंटल रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इसके बाद वी हैव टू क्रिएट एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट हमें बनाने पड़ेंगे, और वो जो एनवायरनमेंट होगा वो आर्टिफिशियल होगा। अब वो आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट हम कैसे बनाएंगे, इस पे भी हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अभी बस इतना समझ जाइए कि स्पीकिंग के लिए हमें ग्रामर को नजरअंदाज नहीं करना। वी हैव टू लर्न ग्रामर फॉर स्पीकिंग पार्ट, और ये जो है हम क्लियर करेंगे एनवायरनमेंट से। तो हाउ एनवायरनमेंट इज इंपॉर्टेंट, हाउ इंग्लिश ग्रामर इज इंपॉर्टेंट, आई हैव टोल्ड यू ईच एंड एवरीथिंग। कोई अधूरा नहीं है, बोथ आर इंपॉर्टेंट। ग्रामर हमें सीखना ही सीखना है। जब हम बात करते हैं इंटरव्यूज की, व्हेन वी आर अटेंडिंग एनी इंटरव्यू, देयर फॉर्मल इंग्लिश, फॉर्मल लैंग्वेज इज रिक्वायर्ड। हम फ्रेंड सर्कल में बात कर रहे हैं, फैमिली मेंबर्स के साथ बात कर रहे हैं, देयर इनफॉर्मल चलेगा, थोड़े थोड़े छोटे छोटे मिस्टेक्स चल जाएंगे। राइटिंग में व्हेन वी आर अपेयरिंग एट एग्जामिनेशंस, वहां पे जो इंग्लिश होगी वो
प्योर इंग्लिश होगी, उसमें कोई मिस्टेक नहीं चलेगा, फॉर्मल इंग्लिश है। तो फॉर्मल इनफॉर्मल हम दोनों की बातें करेंगे। फॉर स्पीकिंग फॉर्मल इज ऑल्सो देयर, इनफॉर्मल इज ऑल्सो देयर। कहाँ किसको यूज करना है, लेटर ऑन वी विल बी हैविंग डिस्कशन ऑन पर्टिकुलर थिंग। सो इंग्लिश ग्रामर वर्सेस इंग्लिश स्पीकिंग, आई थिंक वी हैव कम टू अ कंक्लूजन कि इंग्लिश स्पीकिंग के लिए हमें ग्रामर का नज़रअंदाज नहीं करना। एनवायरनमेंट जो एक चीज़ है उसे भी हमें क्रिएट करना है। बोथ आर इम्पॉर्टेंट, बोथ आर इम्पॉर्टेंट। टुडे आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम दूसरी चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।